Hello class 7 students. Here chapter 2, welcome into the video series of the maths subject. Now chapter 2 is fractions. What is fractions? Numbers written in the form A by B are called fractions. Okay, are called fractions. Okay, so dear children, numbers written in the form A by B are called fractions, where A and B are natural numbers. Where A and B are natural numbers. Okay. Here A is called, okay, example. Here A by B, okay, a number written in the form A by B is called fraction. What? It is called the fraction. Okay, here A is known as numerator, and B is known as denominator. B is known as denominator. For example, some fractions. Let's take some fractions such as 1 by 10, 2 by 7, 3 by 47, etc. Understand your children? So, जो fraction होते हैं उन्हें हम A upon B की फॉर्म में शो कर सकते हैं. अंडरस्टैंड? कुछ नंबर्स होते हैं जो इस तरह से लिखे हो सकते हैं, जहां पर A किसे रिप्रेजेंट करता है, न्यूमरेटर को, और B रिप्रेजेंट करता है डिनोमिनेटर को. अंडरस्टैंड? यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं, like 1 by 10, 2 by 7, 3 by 47. Okay, in 1 by 10, what is the numerator? A is equals to 1. That is numerator. Okay. Now, what about the denominator? It is B. What is B? 10. Okay, that is denominator. Understand your kids? Okay, so I hope fraction, the basic definition of fraction is clear. Okay, number written in the form A upon B, okay, where A is the numerator and B is the denominator, is called fractions. Here, keep in mind that जो नंबर है, एक चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है, और वो यह है कि जो आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स में नंबर्स होंगे वो नेचुरल नंबर्स ही होंगे. अंडरस्टैंड? एंड यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विद द नेचुरल नंबर्स. आपको पता है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं. अंडरस्टैंड योर किड्स? सो आई होप इट इज क्लियर टू यू. अंडरस्टैंड? चलते हैं अब आगे, हम डिफरेंट टाइप की फ्रैक्शंस देखते हैं. ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस. Either you say different kinds of fraction or types of fractions. Types of fractions. Basically हम 5 types के जो fractions हैं उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे. जो फर्स्ट टाइप का फ्रैक्शन है उसे कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन. डेसिमल फ्रैक्शन. ओके, डेसिमल फ्रैक्शंस. देन vulgar fractions, then proper fractions, then improper fractions, and then last mixed fractions. Okay, mixed fractions. Now let us discuss one by one. First, the decimal fraction. Decimal fraction. What is decimal fraction? Decimal fractions. A number, a fraction in which denominator is of any number from 10, 100, 1000, etc. Okay. डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है? एक ऐसा फ्रैक्शन जिसके अंदर डिनोमिनेटर क्या हो?
either 10 हो, 100 हो या 1000 हो. Example, okay, 1 by 10, 2 by 20, 40 by 1000, 98 by 1000 etc. Okay dear kids, तो जो फ्रैक्शन, जिन फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर 10, 100, 1000, 10,000 और एक्सेट्रा 1000, ओके, इस फॉर्म में हो तो उसे हम क्या कहेंगे? डेसिमल फ्रैक्शंस कहेंगे. क्या कहेंगे डियर चिल्ड्रन? डेसिमल फ्रैक्शंस. ओके डियर किड्स, आर यू गेटिंग? ओके, नाउ आप देखिए a अपॉन b. यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं सेकंड, ओके, देन यहाँ पर a क्या है? नेचुरल नंबर 2, while b क्या है? 100. व्हाट इज 100? जो कि क्या है? इस 10, 100 या थाउजेंड्स में से है, ओके, और एक नेचुरल नंबर है. तो हम कह सकते हैं कि जिस भी फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर है वो 10, 100, 1000 हो तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे डेसिमल फ्रैक्शन. ओके डियर किड्स, इट इज क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट, vulgar fractions. Vulgar fractions. Vulgar fractions. First finished. Second, vulgar fractions. A fraction in which denominator is any number except 10, 100, 1000, 0, etc. is called a vulgar fraction. Okay, केस ऑफ फ्रैक्शन जिसके अंदर जो फ्रैक्शन है उसमें डिनोमिनेटर क्या हो? 10, 100, 1000 के अलावा, एक्सेप्ट 10,000, 100 एंड 1000 के अलावा कोई भी नंबर हो, ठीक है, एक्सेप्ट इवन 0, तो उसे हम क्या कहेंगे? वल्गर फ्रैक्शन कहेंगे. एग्जाम्पल, सपोज 2 by 7, 3 by 89, 4 by 7, etc. Understand your kids? So this is called the vulgar fraction. Okay dear kids, it is clear to you? Okay, now let us discuss the next type of fraction, that is proper fraction. Which is the next fraction? It is proper fraction. अगर आपको नहीं समझ में आया तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. डोंट वरी, मैं आपसे वीडियो को एंड करते वक्त एक बार फिर से बहुत ही ब्रीफ में ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा. लेकिन जरूरत है कि आप जब भी वीडियो को वॉच करें तो बहुत ही केयरफुल होकर के वॉच करें. अंडरस्टैंड? एक एक चीज को देखें, नोट करें, अपने पास में जो नोट्स हैं वो पास में लेकर के बैठें जब भी आप वीडियो को वॉच करें तब. Understand? Okay. Now the next fraction is proper fraction. Proper fractions. Proper fractions. A fraction in which numerator is less than denominator is called proper fraction. It's called proper fraction. Okay. In A by B, A is less than B. Okay. तो इसे हम क्या कहेंगे? Proper fraction. Example. 2 by 13. Okay. 17 by 21, 13 by
7 etc. ओके डियर चिल्ड्रन, आप देखिए इन सभी केसेस में जो न्यूमरेटर है 2/13 में 2 जो है वो 13 से छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है. ओके, इन 17/21 21 इज ग्रेटर देन 17. ओके, इन 30/7 देखिए मैंने गलत लिख दिया है, 30/7 में आप ऐसे लिख सकते हैं. ओके, 30/37 में क्या बड़ा है, 37 इज ग्रेटर देन 30. अंडरस्टैंड डियर चिल्ड्रन, समटाइम्स मैं यहाँ पर रॉन्ग भी लिख सकता हूँ, ओके, इनकरेक्ट भी लिख सकता हूँ. ऐसे में आपको ट्राई करना है, कोशिश करनी है कि सर ने लिखा है वो सही है या नहीं है, और नहीं है तो आपको करेक्ट करना है. ओके, मैं जानबूझ करके लिखूंगा आपका अट्रैक्शन कैच करने के लिए. ओके, ताकि आपका ध्यान यहाँ पर बना रहे. जब भी आप पढ़ाई करें तो आप डेफिनेशन को साथ में रखें कि देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा था 30/3, ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा. इसमें डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर 3 है जो कि न्यूमरेटर से छोटा है, और इस तरह के फ्रैक्शंस को क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. अंडरस्टैंड. तो जब भी आप पढ़ रहे हो तो ध्यान से पढ़ें. मैं बीच-बीच में गलत भी लिख सकता हूं आपका ध्यान खींचने के लिए. अंडरस्टैंड. अल्टीमेटली मैं सही कर दूंगा, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है. अंडरस्टैंड. चलिए नाउ, तो इन सब में आपने देखा कि जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से बड़ा है. अंडरस्टैंड. तो इस तरह के फ्रैक्शंस को क्या कहेंगे हम, प्रॉपर फ्रैक्शंस. ओके, नाउ proper fractions also finished. Very easy. Okay, proper fractions also finished. Okay, now let's discuss the second last, improper fraction. Improper fractions. क्या होते हैं improper fractions? A fraction in which numerator is greater than denominator, is greater than denominator. Okay, a fraction in which numerator is greater than denominator, such fractions are called improper fraction. Suppose if a by b is a fraction, then if a is greater than b, then such a fraction is called improper fraction. Okay, improper fraction. Some examples again. Suppose 30/1. Okay, 29/7. Okay, 100/13, etc. In all the cases you can see that numerator, okay, numerator is greater than denominator. Understand? The numerator 29 is greater than denominator 7. The numerator 100 is greater than the denominator 13. Okay, so fractions in which numerator is greater than denominator, then such fractions are called improper fractions. इस तरह के fractions को हम क्या कहते हैं, improper fractions कहते हैं. Understand dear kids? Okay, so यहाँ पर ये जो सेकेंड लास्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस था वो भी खत्म होता है, और अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शंस. ओके, नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शंस. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शंस. ओके, ये भी फिनिश. लास्ट क्या बचता है हमारे पास, मिक्स्ड फ्रैक्शंस. fraction in which can be expressed as the sum of a natural number, which can be expressed as the sum of a natural number and a proper fraction, and a proper fraction is called mixed fraction. Is called mixed fraction.
देखिए जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसमें हम किसी फ्रैक्शन को सम ऑफ नेचुरल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इस तरह के फ्रैक्शंस को क्या कहते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल 1 into 3/4, ओके। और एग्जांपल्स हो जाएंगे 4 into 5/7, ओके। अनदर एग्जांपल्स 9 into 'सो आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर हमने जो फ्रैक्शंस लिखे हैं, इन फ्रैक्शंस को हम इनके सम्स में भी एक नेचुरल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन के सम में भी डिनोट कर सकते हैं। अंडरस्टैंड डियर किड्स? ओके, देखिए एग्जाम्पल के लिए जो फर्स्ट हमारा फ्रैक्शन है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ओके। आप देखिए जो फर्स्ट फ्रैक्शन है उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? 1 into 3/4, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 plus 3/4, जहां पर 1 क्या है? नेचुरल नंबर, ओके, और 3/4 क्या है? एक प्रॉपर फ्रैक्शन, ओके। अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3/4, तो ये कितना हो जाएगा? 4 into 1, 4 plus 3/4, that is 7/4, okay, that is 7/4. Understand here kids? एक जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसे हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? as the sum of a natural number and a proper fraction, okay। देखिए यहाँ पर एक नेचुरल नंबर है, यहाँ पर जो एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसे हमने एक सम ऑफ नेचुरल नंबर एंड सम ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। अब 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके, और इसमें 3 को ऐड कर देंगे, देन पूरे के नीचे हम एक साइन इस तरह से लाइन खींच देंगे। 4 1 जा 4 प्लस 3/4, दैट इज 7/4, ओके। दूसरा ट्राई करते हैं 4 into 5/7। देखिए इसको भी हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? नेचुरल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखिए 7 into 4 plus 5/7, 7 4s are 28 plus 5/7 कितना हो जाएगा डियर किड्स? 33/7। और ये जो है इसे आप रफ कॉपी में ट्राई कर सकते हैं। अंडरस्टैंड डियर किड्स? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। एक बार ध्यान से देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अंडरस्टैंड डियर किड्स? तो अभी हम आगे बढ़े, ओके। अभी हम कुछ और फ्रैक्शंस के बारे में भी बात करेंगे। हमने इस वीडियो में 5 फ्रैक्शंस के बारे में बात की, ओके। डेसिमल फ्रैक्शन, पोलर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। अभी हम एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखते हैं, देन आफ्टर हम और फ्रैक्शंस के बारे में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इफ अ फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय अ सेम non-zero number, then its value does not change, its value does not change, okay। अगर हम किसी एक फ्रैक्शन को किसी नॉन जीरो नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। अंडरस्टैंड? फॉर एग्जाम्पल
3/4, ओके 3/4 में अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो देखिए 3 2 6, 4 2 8। अगर 3/4 को 3/3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9/12। ओके, नाउ एक और एग्जांपल लेते हैं। 11/12। देखिए 11/12 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? 11/12। 11/12 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 22/24। नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग इज, अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि देखिए जो ये फ्रैक्शन था 3/4, इसको आप और किस तरह से लिख सकते हैं? 6/8 की तरह लिख सकते हैं, और किस तरह से लिख सकते हैं? 9/12। इनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, ध्यान रखिए डियर किड्स, क्योंकि मैं 6/8 में अगर 2 को डिवाइड करता हूं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो अगेन मुझे 3/4 मिल जाएगा। ठीक उसी तरह से 9/12 में अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो देखिए मुझे 3/4 वापस मिल जाता है। अंडरस्टैंड डियर किड्स? और यही हमारा नेक्स्ट फ्रैक्शन भी है, ओके, जिसे हम क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ओके, चलिए तो अब हम आगे देखते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के बारे में। आई होप इट इज क्लियर। ओके, तो ये तो हो गई 5 मिक्स्ड फ्रैक्शन। अभी 6th जो है वो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, ओके, and 7 is like fractions, like fractions, okay, and 8 is unlike fractions. Understand your kids? Okay, now I hope it is clear. अगर किसी भी नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, और यही हमारी क्या प्रॉपर्टी है? नेक्स्ट, ये हमारी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होंगे। देखिए सेम एग्जांपल ले लेते हैं। 6th, इक्विवेलेंट fractions. If a fraction is multiplied by a same non-zero number, then the new fraction so obtained, okay, then the new fraction so obtained is equal to the main fraction, okay, understand? मेन फ्रैक्शन का मीनिंग है, देखिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हम यही एग्जांपल, ओके, हम कोई नया एग्जांपल लेते हैं। सपोज 2/3, ओके, देखिए इंक खत्म हो चुकी है। एनीवेज 2/3, यहाँ 2/3 क्या है? एक फ्रैक्शन है, ओके। अब ये मेन फ्रैक्शन है। ये कौन सा फ्रैक्शन है? आपका मेन फ्रैक्शन। देखिए मेन फ्रैक्शन क्या होता है? ये फ्रैक्शन इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है? 1 है। इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? 1। अंडरस्टैंड? इसके अलावा ये दोनों आपस में प्राइम नंबर्स हैं, ओके, ये दोनों को प्राइम है, ओके, 2 and 3 बोथ आर को प्राइम, बिकॉज 2 and 3
both have only one as a common factor. Okay, तो 2 और 3 क्या हो जाएंगे? कॉमन मेन फ्रैक्शन, और ये इनकी रिड्यूस्ड फॉर्म भी कह सकते हैं, लेकिन अभी हम इसके बारे में बात नहीं करते हैं। अभी सिर्फ हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को देखते हैं। अब अगर हम 2/3 में 2/2 को मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या ऑब्टेन हो जाएगा? 4/6। अगर हम 2/3 में 3/3 को मल्टीप्लाई करें तो 6/9। अगर हम 2/3 में 4/4 को मल्टीप्लाई करें तो 8/12 एंड सो ऑन। अंडरस्टैंड? तो अब हमें 2/3 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कौन-कौन से मिले? 4/6, ओके, 6/9, 4/8, 4/12, और अगर आप चाहें तो और भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सपोज 5/5 आपको मिल जाएगा 10/15। ओके, 2/3 को यदि आपने 6/6 से मल्टीप्लाई किया तो 12/18। तो आप और लिख सकते हैं 10/15, ओके, 12/18 etc. These all are called, okay, ये जो हैं ये सारे, इन्हें हम क्या कहेंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शंस, ओके, इंक्लूडिंग 2/3। इन्हें हम क्या कहेंगे? इन्हें हम क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अंडरस्टैंड डियर किड्स? इट इज क्लियर? आप एक बार देख लीजिए। इज इट क्लियर? ओके, अभी हम आगे और भी फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर आप इतना देख लीजिए। आपको कोई डाउट तो नहीं है? आई होप कि आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। ओके, अभी हम लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। ओके, अंडरस्टैंड? नाउ the next fractions are like fractions. Seventh is like fractions. A fraction in which fractions in which the denominators are same. The denominators are same are called like fractions. Okay, are called like fractions. Example, okay, suppose 2/3, 3/3, okay, 1/3। आप देखिए इन तीनों में जो डिनोमिनेटर है वो क्या है? कॉमन, एंड दैट इज 3। तो इसे हम क्या कहेंगे? ये जो फ्रैक्शंस हैं इन्हें हम क्या कहेंगे? लाइक फ्रैक्शंस। ओके, नाउ अदर एग्जांपल्स। सपोज 7/14, ओके, 8/14, 9/14, 10/14। ओके, आप देखिए इन सभी में जो डिनोमिनेटर है वो कॉमन है, तो इस तरह के फ्रैक्शंस को हम क्या कहेंगे? लाइक फ्रैक्शंस। ओके, इस तरह के फ्रैक्शंस को हम क्या कहेंगे? लाइक फ्रैक्शंस। इज इट क्लियर? वेरी इजी। आप मुझे एक बात बताइए, जो अनलाइक फ्रैक्शंस है वो जस्ट इसका अपोजिट है। देखते हैं, एक जो है अनलाइक फ्रैक्शंस, ये अनलाइक फ्रैक्शंस ये क्या है? फ्रैक्शंस इन विच डिनोमिनेटर्स आर नॉट सेम are called unlike fractions. Example, देखिए एग्जाम्पल्स। अगर मैं लिखता हूं 1/2, 3/4, 5/7, तो देखिए यहां पर तीनों ही फ्रैक्शंस में, फर्स्ट फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर है 2, सेकंड फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर है 4, और
थर्ड फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर है 7। तो इस तरह के सेट ऑफ फ्रैक्शंस को हम क्या कहेंगे? अनलाइक फ्रैक्शंस। इजी, बहुत ही आसान है। देखिए 3/4, 22/27, 18/19, इसमें भी in this set of fractions, okay, 4, 27, 19, these all are क्या है? डिनोमिनेटर्स हैं, and these all are not same. Denominator not same, denominator not same. ओके, तो इस तरह के फ्रैक्शंस को हम क्या कहते हैं? इस तरह के फ्रैक्शंस को हम कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस. Okay dear kids, is it clear to you? Okay, I would like to end the video now.